Assalamu alaikum. We are beginning the first unit in the first week of teaching reading course. Let's have a look at what we are going to discuss this week. So we are going to have a look at the evidence-based approaches, methods and strategies for teaching reading and writing. और इसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो हम एविडेंस बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस, फोनिक्स अप्रोच क्या होती है उसको हम रिवाइज करेंगे और आपको रिमाइंड करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे विद रीडिंग. देन होल लैंग्वेज अप्रोच क्या होती है, एंड विल आल्सो कंपेयर द वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड in reading approaches, and based on that we are going to come to an understanding of what is the best approach for teaching reading in any context or in the primary levels which you are going to go and work in. और इसमें जो है evidence based approaches, obviously this is the most important thing which we are going to begin right now. So पहले तो हम जरा थोड़ी सी ये देखते हैं कि कुछ रीडिंग से रिलेटेड कॉमनली हम मिथ्स कोई होती हैं, हमारे जहन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच मे बी राइट और विच मे बी रॉन्ग बट वी डोंट नो देम क्लियरली, लेकिन वो चीज़ें इतनी कॉमनली हम समझते हैं कि वो वाइड स्प्रेड नॉलेज है कि हम उनको ट्रू समझते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ टेस्ट, दिस इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन कि कॉमनली हेल्थ जो मिथ्स हैं अबाउट रीडिंग वो क्या हैं और आपका उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है. एंड एज द कोर्स प्रोग्रेस यू कैन कीप अ टैब के किस तरह से आप जो है इसका ट्रैक रख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हैव योर perceptions and perspectives about teaching reading, have they changed or evolved or not. तो learning to read is a natural process. आपने करना क्या है कि आपने अपने लिए मार्क करना है किसी एक सेपरेट पेपर पे या ऑन अ हैंडआउट यू हैव that to what extent do you agree with each statement. अगर आप कम एग्री करते हैं तो आप 1 की तरफ मार्क्स देंगे और अगर आप ज्यादा एग्री करेंगे तो आप 10 की तरफ मार्क्स देंगे और इन बिटवीन फिर आप अपनी कितना ज्यादा बिलीव करते हैं तो आप 6, 7, 8, 9 में से कुछ चूज कर लें, कम बिलीव करते हैं तो 2, 3, 4 में से आप चूज कर लें, या आप अगर बहुत न्यूट्रल हैं आप 5 कर लें. तो इस तरह से आप अपने आप को मार्क करेंगे. दिस इज नॉट अ टेस्ट, दिस इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन. सो लर्निंग टू रीड इज अ नेचुरल प्रोसेस. डू यू एग्री और डिसएग्री? So I'm not going to share my answers because I don't want to influence you, but when we have a discussion in class, we can discuss these. So children will eventually learn to read if given enough time. Yani ke all children have the capability. If they are given enough time and they are allowed to set their own pace, they will eventually learn to read. The third one is reading programs are successful. Ab is successful se kya murad hai? As we move along this course, we'll try to find out. We used to do a better job of teaching children to read in the earlier days, or as with the passage of time, जो reading की instruction है या quality है वो affect हुई है. Do you agree or disagree? Just mark for your own self. Then skilled reading involves using syntactic and semantic cues to guess words, and good readers make many mistakes as they read authentic texts. So do you agree with this or not? कि guesswork होता है, आप या तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसका सिंटैक्टिक जो स्ट्रक्चर है उससे आप कोई ना कोई क्यू ले लेते हैं या सिमेंटिक क्यूज ले लेते हैं, यानी उसके मीनिंग पे बेस कोई क्यूज लेते हैं, और कभी जो आपको वर्ड्स नहीं आते आप उसके बारे में गेस लगा के मतलब समझने की कोशिश करते हैं. और दूसरा ये कि यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एज यू रीड ऑथेंटिक टेक्स्ट. डू यू एग्री विद दिस और नॉट? The next sentence is research can be used to support whatever your beliefs are. Lots of programs are research based. So research is a helpful or a good experimental tool. Do you agree or not? Number 7 is phoneme awareness is a consequence, not a cause of reading acquisition. तो ये कि reading जब आप सीखते हैं तो उससे आपको phoneme awareness यानी individual sounds की awareness आ जाती है, ना कि individual sounds की वजह से आप reading acquire करते हैं या reading acquisition आपकी होती है. Number 8, short-term tutoring for struggling readers can get them caught up with their peers and the gains will be sustained. तो short-term tutoring जो है वो struggling readers के बहुत काम आती है और वो अपने peers के साथ मिल जाते हैं, या ये कि वो काफी अरसे तक struggling readers रहते हैं और अपनी own pace set करते हैं. So do you agree with this statement? And how much do you agree or not? If it is in the curriculum, then the children will learn it, and a balanced reading curriculum is ideal. तो
करिकुलम ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और उसमें बैलेंस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, रीडिंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. दैट्स द आइडियल करिकुलम. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑन दैट? Some people are just genetically dyslexic. कि कुछ को dyslexia होता है, that they have this natural problem or genetically, and there is nothing we can do about it. And the last one is add another myth you think exists about reading. The prospective teachers will just add another myth of your own and we can have a discussion. तो आपको जो लगता है कि रीडिंग के बारे में कोई मिसकंसेप्शन है या कोई ऐसी मिथ है कि जिसको आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे और फिर अपनी क्लास फेलो से हम फिर पूछेंगे और लेट्स सी कि हमें किस किस्म के पर्सपेक्टिव आते हैं. तो दिस इज योर चांस ऑफ एडिंग अनदर मिथ कि जहाँ पे आप लिस्ट में आइटम 11 के तौर पे डाल सकते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू नाउ बिगिन सेशन ऑन एविडेंस बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन, EBRI, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी कुछ वीकनेसेस. ओके, so I hope there are no questions this far, और अब तक हमने सिर्फ अपनी जो है थोड़ी वार्मिंग की है, वार्म अप किया है. So before we read any question any further, let me ask you a few questions, और इसकी आप जो है इसके बारे में सोचें और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास लिख लें, just to refresh your memory. What are some teaching reading methods you have heard or read about? और इसमें ये भी जहन में रखें कि कुछ मेथड्स आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश में भी किए थे. तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स कि जो आपने टीचिंग ऑफ रीडिंग के लिए उसके बारे में पढ़ा है या सुना है? व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मेथड्स कि उनकी रीडिंग मेथड्स की एक खास बात या स्टैंडिंग आउट पॉइंट क्या है कि जो उस मेथड को यूनिक बनाता है या इट इज सक्सेसफुल और नॉट. एंड हाउ डू दीज मेथड्स हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप रीडिंग स्किल्स? So वही जो उसके characteristics या features हैं, how do these methods help students develop their reading skills? यहाँ पे आप जरा वीडियो को पॉज करके so write down a few points about your own understanding of the different teaching reading methods and how they are different, or what are their characteristics and how they help the students. So let's begin with Handout 1.2, Evidence-Based Reading Instruction, its strengths and challenges. What approaches to literacy or reading are there? So major current theoretical perspectives on literacy teaching include the debate generated by three polarized positions about quality literacy education. और ये three positions क्या हैं, या literacy में तीन जो most popular methods हैं वो क्या हैं? The skill-based versus the whole language debate. कि skill based कि आप रीडिंग की सेपरेट स्किल्स यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को सेपरेटली टीच करते हैं या होल लैंग्वेज के तौर पे टीच करते हैं. तो दिस इज वन पोजीशन कि जो आप आइदर और होता है कि आप आइदर स्किल बेस्ड को पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं या होल लैंग्वेज डिबेट. द एक्सक्लूसिवली प्रिंट बेस्ड अप्रोच वर्सेस मल्टी लिटरेसीज. और इसमें एक और डिबेट जो यहाँ पे है, जहाँ पे आपको एक पोजीशन अडॉप्ट करनी पड़ती है, वो ये है कि क्या आप प्रिंट बेस्ड अप्रोच विच इज हेविली फोकस्ड ऑन रीडिंग टेक्स्ट, उस पे आप जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उस पे आप अपनी अप्रोच को बेस करेंगे फॉर टीचिंग रीडिंग, या आप मल्टी लिटरेसीज, और मल्टी लिटरेसीज में आपकी ऑडियो विजुअल एड्स, अदर टाइप की लिटरेसीज भी आ जाएंगे कि आपको डिजिटल लिटरेसीज इसमें इनबिल्ट होता है. तो डू यू प्रिफर वन स्टैंस और द अदर? एंड द थर्ड डिबेट इसमें जो जहन में रखने की जरूरत है वो ये है कि द कल्चरल हेरिटेज वर्सेस द क्रिटिकल लिटरेसी थ्योरेटिकल मॉडल्स अप्रोच. कि कल्चरल हेरिटेज की क्या वैल्यू होती है, या क्रिटिकल लिटरेसी में अगेन you're empowering people who are not in power, और इस तरह का कोई वर्ड्स कि कौन सा टेक्स्ट आप अपने रीडर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं कि जो पीपल इन पावर जो हैं वो आपके ऊपर एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर या अ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर आप पे एग्जर्ट करते हैं, और उसके रिएक्शन में किस तरह से रीडर्स जो हैं वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं. तो ये डिफरेंट डिबेट्स हैं जिनको जहन में रखने की जरूरत है. सो व्हाट इज एविडेंस बेस्ड रीडिंग इंस्ट्रक्शन? Any discussion of evidence-based reading instruction should begin with the definition of reading and a clarification of what the term evidence-based means.
because reading is a complex system of deriving meaning from print. ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी 2005 की डेफिनेशन है कि रीडिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिराइविंग मीनिंग फ्रॉम प्रिंट. अब वो प्रिंट किस फॉर्म में होगा, इसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं. डिराइविंग मीनिंग किस चीज को कहते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और सिस्टम में क्या डिफरेंट चीजें हैं वो आपको रीडिंग की इस पे भी समझना चाहिए. तो टीचिंग ऑफ रीडिंग विल कवर ऑल दीज, हाउ टू टीच this kind of reading to the young learners. So it requires an understanding of how phonemes or speech sounds are connected to print. यानी oral different singular sound units को आप print से कैसे connect करते हैं, reading में ये आता है. The ability to decode unfamiliar words, और इसमें identify करें कि ये किस already known words के साथ मिलता है या सिमिलर है, और इसकी वजह से हम किस तरह से इसकी साउंड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन और इसके मीनिंग के बारे में हम अंदाजा लगा के इसको समझ सकते हैं. द एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, कि आप एट अ फ्लो किस तरह से रीडिंग कर सकते हैं कि आपके सुनने वाले को भी समझ आए और आपको भी समझ आए, फ्लुएंसी डेवलप करना. सफिशिएंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी टू फॉस्टर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए लैंग्वेज के बारे में या उस टॉपिक के बारे में या उस कल्चर के बारे में सफिशिएंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उससे रिलेटेड वोकैबुलरी आनी चाहिए, तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है. तो रीडिंग सिखाने का एक मकसद ये भी है. द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एक्टिव स्ट्रैटेजीज टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम प्रिंट, कि आप लिखे हुए टेक्स्ट में से अप्रोप्रिएट एक्टिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू उसका मीनिंग समझें, तो ये स्ट्रैटेजीज भी लर्नर्स को आनी चाहिए. The development and maintenance of a motivation to read, ये सब कुछ तभी possible है जब learners के पास motivation होगी and they are reading for a certain purpose in mind, तभी reading possible है. तो ये reading के अंदर inbuilt different understandings हैं. So evidence based refers to practices that have been shown to be successful in improving reading achievement. तो evidence based क्या है कि proven strategies या practices हैं कि जिनके बारे में आप समझें कि research की गई और ये आउटकम आया सामने कि ये काम करता है या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं विद लर्नर्स इन अ पर्टिकुलर सेटिंग, या लर्नर्स ऑफ अ सर्टेन एज, या लर्नर्स हु हैव अ सर्टेन मोटिवेशन टू रीड. तो एविडेंस आपको उन प्रैक्टिसेस के बारे में बताएगा which you can also replicate in your own classrooms. The success of these practices is demonstrated in two ways: by research study data collected according to rigorous design, and by consensus among expert practitioners who monitor outcomes as part of their practice. So यहाँ पे evidence दो जगहों से आ रहा है. एक तो research studies आप conduct करें और उसमें experiments करें और उसके through data आए, अच्छा एक design implement हो जो हर तरह से पुरानी research पे based हो, वहाँ से फिर data आए, या फिर data उन experts के थ्रू आए कि जो इस फील्ड में बहुत अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो मॉनिटर करते रहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस पे किस चीज का पॉजिटिव आउटकम होता है, किसका नेगेटिव. तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी कुछ सिखाएं कि दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क, दिस विल वर्क इन योर सेटिंग्स, दिस विल नॉट वर्क इन योर सेटिंग, और फिर आप उसको टेस्ट आउट करें. तो दो सोर्सेज ऑफ एविडेंस हैं उन प्रैक्टिसेस की कि विच मे इम्प्रूव रीडिंग अचीवमेंट और नॉट. These results, whether scientific data or expert consensus, must be valid and reliable and come from a variety of sources. So how can they be valid and reliable? Valid का मतलब कि आपकी सेटिंग में वो applicable हों और ये समझ आती हो कि जो चीज़ आप सिखा रहे हैं उसके लिए ये चीज़ valid है, उसके लिए applicable है या नहीं है, और फिर उसकी सोर्स रिलायबल हो कि कोई रिलायबल प्रैक्टिशनर या रिलायबल रिसर्च किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि आप रिलाई कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग विद ह्यूमन बीइंग्स और उन यंग लर्नर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो दे हैव दिस हैज अ सर्टेन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब उनको टीच कर रहे हैं, आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करते करते उनका एक साल जाया करवा दें, तो आपको फिर जो है नुकसान तो उनका होगा. आप तो एज ए टीचर जो है यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास, लेकिन रीडिंग एबिलिटी जो अफेक्ट होगी वो उन यंग लर्नर्स की होगी कि जिन पे आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, चीज कोई प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं. तो जो भी चीज आप करें आपको पता होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए वो वैलिड है,
इनकी एज के हिसाब से, इनके लेवल के हिसाब से, जो सिखाना है उसके हिसाब से वो चीज़ वैलिड भी है। क्यों? क्योंकि मुझे पुरानी रिसर्च ने या फलां एक्सपर्ट ने बताया है, और वो जो पुरानी रिसर्च और एक्सपर्ट हो वो रिलायबल सोर्सेज से आपके पास आए। फॉर इंस्टेंस, मैंने ऐसे ही बैठ के कोई चीज़ ना लिख दी हो कि ना मैंने इसको टेस्ट किया, ना कुछ मैं कहूँ और मैंने कोई अपना असर रसूख लगा के उसको पब्लिश कर दिया और अब मैं कहूँ कि जो सारे इसको फॉलो करो। नहीं, बट आई शुड हैव इनफ ट्रस्ट इन द सोर्स कि जिसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ या जिस इंस्टीट्यूट से वो रिसर्च आ रही है या जो वो प्रैक्टिशनर या वो एक्सपर्ट है जो मुझे ये बात बता रहा है, आई शुड बी एबल टू रिलाई ऑन दैट पर्सन कि फिर मैं उनकी कही हुई बात को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है? A key concept of evidence-based reading instruction is teach the reader, not the reading. इसका क्या मतलब है? Teach the reader, not the reading. I want you to pause the video and also just discuss this concept with your friends or class fellows for just 1 minute. Teach the reader, not the reading. I hope you discuss something. और अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं कि टीच द रीडर नॉट द रीडिंग में ये बात है कि द फोकस ऑफ एविडेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज नॉट टू हैव स्टूडेंट्स मास्टर कंटेंट एरिया सब्जेक्ट मैटर, रादर it focuses on helping students master reading strategies that build reading skills. तो खाली रीडिंग का कोर्स कंटेंट कवर कराना या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना ही जरूरी नहीं है। एविडेंस बेस्ड इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि हम ऐसी इंस्ट्रक्शन दें कि जो स्टूडेंट्स को रीडिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है और वो उन रीडिंग स्ट्रैटेजीज पे एक्सपर्ट हो जाएं कि जिनके थ्रू वो अपनी खुद भी रीडिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं या रीडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो द टीचर इज देयर टू हेल्प द रीडर learn those strategies and learn to read, not just cover reading material कि कोर्स कवर करा दिया, लर्नर को आया है या नहीं आया, स्ट्रैटेजी सिखाई है या नहीं सिखाई, पेपर में जो है कामयाबी के लिए खाली आपको रोट मेमोराइजेशन सिखा दी गई लेकिन आपको वो स्ट्रैटेजीज नहीं सिखाई गई कि जिसके थ्रू you become skilled readers. So evidence-based instruction is focused on the reader, not the reading material. For example, when the student learns the comprehension strategy of summarizing, he or she transfers it to another situation, thereby allowing the student to make meaning from a variety of text. तो आपको सिखाना ये है कि अगर समराइज करना है तो आपने समरी का रट्टा नहीं लगवा देना कि जी समरी आप इस चैप्टर की लिख लो और आपको मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाओगे, बल्कि यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि समराइजिंग की स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से वो खुद समरी डेवलप कर सकते हैं। तो in future when they read another text, they have the ability to get those important points which will help them summarize that text, और यहाँ से उनमें वो ability पैदा हो जाए कि जिसके थ्रू different type के text जो हैं वो learn कर सकें और independently read कर सकें और अपनी reading skills को enhance कर सकें. So now we are going to move on to the topic of the phonics approach. You can pause the video here, go through the upper section के जो हमने अब तक discuss किया है, और if you have any questions regarding that, just note them down and we can address them in the class discussion. So let's begin with certain questions जो हम phonics approach को करने से पहले अपने जो है पुरानी नॉलेज को एक्टिवेट करने के लिए हम अपने आप से पूछेंगे, एंड आई वांट यू टू पॉज द वीडियो एंड आंसर दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ, राइट देम डाउन समवेयर, राइट योर आंसर्स टू देम समवेयर, एंड देन वी कैन प्रोसीड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज, व्हाट आर सम थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट द फोनिक्स अप्रोच? क्या चीज फोनिक्स अप्रोच के बारे में आपको पहले ही पता है? What are some things you would like to learn about the phonics approach? कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको अभी शायद ना पता हो या थोड़ी पता हो, you would like to learn them more? Do you know someone who uses this approach to teach reading? अपने previous school experiences में देखें, अपने इर्द गिर्द के practitioners को देखें, अपनी teachers को देखें, school setting में different teachers को आप जाके observe करें. Who uses this approach to teach reading? And the last question is, how have you already tried any ideas in practice? क्या आप teaching practices पे जाते रहे हैं, आपने इंग्लिश या उर्दू टीचिंग में
फोनिक्स अप्रोच कहीं इस्तेमाल की है या नहीं की? Before proceeding any further, just write down a few points about these questions. Okay, so let's move forward. Let's have a brief look at approaches to teaching phonics. तो सबसे पहले we have the analogy phonics. Analogy का क्या मतलब है कि एक चीज को दूसरे के साथ आप कंपेयर करें, उनमें सिमिलैरिटीज आप फाइंड करें कि फेमिलियर वर्ड्स जो हैं उनको उनकी साउंड्स का अंदाजा करके आप न्यू लेटर्स के साथ वही साउंड को कहने की कोशिश करें, एनालॉजी करें कि जैसे ये साउंड है, जैसे उर्दू में एग्जांपल दीजिए राज है, तो राज की तरह यानी आपको अलिफ जीम की साउंड आ रही है तो र की जगह त लगा दें तो क्या बनेगा? ताज। ठीक है। और बाजा, बाजा की जगह बे की जगह रे लगा दें, यानी ब की तरह र लगा दें तो क्या बनेगा? बाजा है तो ब की जगह राजा। इस तरह स्टूडेंट्स जो है एनालॉजी फोनिक्स करते हैं। देन तारा एंड हारा, इंग्लिश में उन्होंने कहा कि स्टंप एंड जंप, तो आपको जंप में अंप साउंड का पता है तो आप कहेंगे ज की जगह स्ट आ जाए तो बाकी साउंड अंप की रहेगी, स्ट अंप स्टंप। देन रन में र अन, तो आप र की जगह फ लगा दें तो फन फन फ अन। तो इस तरह से आप डिफरेंट चंक्स, डिफरेंट साउंड के ग्रुप्स जो हैं, साउंड चंक्स को आप फेमिलियर वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर उन फेमिलियर वर्ड्स के साथ आप रिलेट करते हैं न्यू साउंड्स को, और फिर उसी तरह के डिफरेंट जो है वो साउंड को जोड़ के न्यू वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज एनालॉजी फोनिक्स। और इसमें यहाँ पे सिंधी में भी एग्जांपल्स आपके हैंडआउट्स में दी हुई हैं, बट आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट। अगर कोई आप लोगों में से फेमिलियर है, वी कैन हैव अ लुक एट दिस टू व्हेन वी डिस्कस। सो एनालिटिक फोनिक्स, एनालिटिक फोनिक्स में क्या है? स्टूडेंट्स लर्न टू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन वर्ड्स and to use experience to sound out words. Student can make good guesses about how to pronounce words by drawing on past experiences and then analyzing these other words. अब यहाँ पे analysis का part ज़्यादा आ रहा है कि उन्होंने कहीं भी similar sounds में नहीं, कि comparison direct का direct नहीं हो रहा, जैसे ऊपर वाले words में तो एक sound change हो रही है, बाकी exactly जो है वो बच्चे के लिए वो easy हो गया कि वो राज और ताज, उसकी शक्ल भी जो है वो इजी है, उसको कंपेयर करना भी इजी है, लेकिन अगर एंड वाली साउंड चेंज हो जाए तो वो बच्चे एकदम उसको कंपेयर नहीं कर सकेंगे। मगर एनालिटिक में वो देखेंगे कि अच्छा ये र लिखा हुआ है या प लिखा हुआ है, ये मैंने कहाँ पढ़ा था, इसकी साउंड कैसी थी, दूसरा पार्ट मैंने कहाँ पढ़ा था, अब मैं इनको कैसे मिला के डिफरेंट साउंड्स को कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि स्टूडेंट्स नो द वर्ड पार्क, they know the word park. अब न्यू वर्ड्स अगर उन्होंने पढ़ने हो, पैन, पॉपकॉर्न, पांडा, preppy, with teachers help students notice or analyze what they have in common. तो पार्क और पैन में क्या सिमिलैरिटी है कि PA की इनिशियल साउंड जो है वो एक तरह की लिखी हुई है, तो मे बी वो पा की तरह इसको पा पान पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर टीचर उनको गाइड कर देंगे दिस इज पैन, या बिगिनिंग साउंड को वो देख के एनालाइज कर लेंगे कि ओके बात की बात तो बाद में देखते हैं बट द इनिशियल साउंड इज द सेम। तो एनालिसिस इसमें वो किस प्रोसेस से अपनी रीडिंग को साउंड आउट कर रहे हैं वो उसके बारे में गौर करेंगे। उर्दू में इसी तरह उन्होंने कहा कि इफ दे नो द वर्ड परी, सो पर यानी प र की साउंड को जोड़ के आना है, तो फिर वो एनालिसिस करेंगे कि ओके दिस इज पर, आई ऑल्सो नो, आई नो पर फ्रॉम परी, अब ये क्या लिखा हुआ है कि ये के आगे च साउंड आ गई, तो परी में च इंसर्ट कर दें पर ची, तो वो अपना जो है एनालिसिस के थ्रू रीडिंग करेंगे। इसी तरह पर्दा, तो द की साउंड में भी उन्होंने कहीं और पढ़ी हो और पर की साउंड कहीं और पढ़ी हो, और फिर वो एनालिसिस के थ्रू देखें कि इन साउंड्स को मिला के हम किस तरह से सीख सकते हैं न्यू साउंड। एम्बेडेड, स्टूडेंट्स लर्न थ्रू इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन, यानी उनको क्लियरली इंस्ट्रक्ट ना किया जाए बल्कि प्रैक्टिस के थ्रू अंदर ही अंदर छुपी हुई इंस्ट्रक्शन दी जाए, जिसको इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन कहा जाता है कि टीचर को पता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, बस स्टूडेंट्स को अपने प्रोसेसेस का नहीं पता होता, लेकिन फिर भी दे मेक अ कनेक्शन एंड दे अंडरस्टैंड। By embedding phonics instruction in text reading, for example, while reading a story, a teacher may say, "This is Mariam. Look at this
M in Mariam sound and ask the class to make the sound. तो इस तरह जो है वो टीचर जो है अब ये नहीं बता रही कि बेटा आप क्या कर रहे हो, ये फनीम को आइडेंटिफाई कर रहे हो या बिगिनिंग साउंड पे आप फोकस कर रहे हो। वो रीडिंग कराते कराते फोनिक्स की सारी प्रैक्टिसेस जो है वो बच्चे को साथ साथ करवा दें। बच्चे को रियलाइज नहीं हो रहा, टीचर को रियलाइज हो रहा है। तो जैसे दिस इज मरियम, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस साउंड, और टीचर फिर उसको पॉइंट आउट करे। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ओके दिस इज द म साउंड, दिस इज इन द इनिशियल प्लेस। बच्चे को समझ आ जाएगी, लेकिन उसको डिफाइन करना में भी ना आता हो। तो रीडिंग कराते कराते, यानी स्टैंड अलोन एग्जाम्पल्स के साथ नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ नहीं, वर्ड्स के साथ नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस टेक्स्ट के अंदर ही एम्बेड हुई भी एग्जाम्पल्स के थ्रू टीचर जो है वो उनको सिखाएं। और फिर रीडिंग के टेक्स्ट इस तरह से बने हों कि वो एक सर्टेन साउंड को बार बार रेपिटेशन के थ्रू बच्चे के जहन में एम्बेड कर दें। फॉर इंस्टेंस, टीचर में हेल्प students find words familiar in a story. So book, brook, took, double OK की uk sound की प्रैक्टिस के लिए इस तरह का टेक्स्ट हो कि I sat by the brook and read my book, then I took a look at my new, and so it carries on. तो यहाँ पर बच्चे जब एक दफा ब्रुक कर लेंगे, बुक कर लेंगे, टुक एंड लुक कर लेंगे, अब 5-6 दफा 10-12 दफा इसी स्ट्रक्चर की रेपिटेशन के थ्रू उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा विदाउट देयर बीइंग कॉन्शियस कि ये डबल ओ के की साउंड जो है दिस इज द उक साउंड, और आइंदा डबल ओ के जहां होगा तो उनके दिमाग में बैठा होगा कि दिस इज लाइक बुक और लुक और टुक, और वो इसको पढ़ सकेंगे। तो दिस इज द एम्बेडेड वे। इसी तरह से राजा बाजा लाया, अब राजा एंड बाजा जो है वो उसकी साउंड्स को कंपेयर करके तो आजा पढ़ लेंगे या कोई इस तरह के सिमिलर वर्ड्स को वो पढ़ लेंगे, और एम्बेडेड प्रैक्टिस के थ्रू उनको आप सिखाएंगे। जैसे न्यू एग्जांपल, आजा राजा खाना खाजा। तो ये आपने देखा होगा कि उर्दू की बुक्स में बच्चों को अल्फाबेट भी सिखाया जा रहा होता है, उसके वर्ड भी सिखाया जा रहा होता है, और बिगिनिंग में इस तरह की एम्बेडेड प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराई जा रही होती है। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं फोनिक्स थ्रू स्पेलिंग, कि हम स्पेलिंग, और स्पेलिंग में जिस तरह से डिफरेंट लेटर्स लिखे हों, हर लेटर की इंडिविजुअल साउंड या उसकी फोनीम के थ्रू हम फोनीम की साउंड्स को जोड़ के न्यू वर्ड को साउंड आउट और स्पेल करना हम उनको सिखा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी भी अब फोनिक्स की डिफरेंट बुक्स होती हैं तो उसमें अब ये बैट है तो इसको लिखा जाएगा कि भाई ये 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स B-A-T, इनकी साउंड्स इंडिविजुअली बुलाएं ब ए ट, और फिर इन तीनों साउंड्स को, फोनीम्स को आप जोड़ें ब एट ब एट ब एट बैट बैट। इस तरह से आप इसकी साउंड को जोड़ें तो स्पेलिंग के इस्तेमाल से। इसी तरह से किताब है तो क ता ब किताब किताब, अब इस तरह से बच्चा किताब पढ़ना सीख लेगा। ठीक है। उसके बाद आया सिंथेटिक फोनिक्स। अब सिंथेटिक फोनिक्स क्या है? स्टूडेंट्स लर्न टू साउंड आउट ईच लेटर ग्रुप, letter or group of letter in a word and then blend the letters to make a word. अब सिंथेटिक में क्या है? वो एक बड़े वर्ड को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेंगे, और फिर उसके बाद दिस इज ऑल्सो क्लोजर टू दैट स्पेलिंग वाला जो प्रोसेस है कि फॉर इंस्टेंस अब उन्होंने उर्दू की एग्जाम्पल देखें कि स्टूडेंट्स रीड साग बाय साउंडिंग आउट स आग, और फिर उसको वो ब्लेंड करके साग बना ले। तो स्पेलिंग के थ्रू जो आप पढ़ा रहे हैं वो सिंथेटिक फोनिक्स के बहुत करीब है। ठीक है। और इसी तरह से सिंथेटिक का क्या मतलब है? सिंथेसाइज करना, जोड़ना। तो डिफरेंट साउंड्स को, ग्रुप ऑफ लेटर्स को या लेटर की साउंड्स को पहले वो प्रैक्टिस करें, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर उसको ब्लेंड करें, ब्लेंड द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। तो ब्लेंडिंग इसमें आ गई, तो उन्होंने सिंथेसाइज कर दिया। तो दीज आर द डिफरेंट definitions of different आप इसमें techniques which may be used for teaching of phonics. Okay, what I want you to do now is कि अब आपने एक रीडिंग खुद करनी है। आपके पास ये हैंडआउट मौजूद है, आप इसकी खुद रीडिंग करेंगे उस टेक्स्ट की, नीचे ही दिया हुआ है इसी हैंडआउट में, और फिर हम इसकी क्लास डिस्कशन करेंगे कि जो फोनिक्स इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है कि टीचिंग ऑफ फोनिक्स, यहाँ से ये पेज 20 से स्टार्ट हो रही है, और इसमें डिफरेंट जो इसकी जो है पर्सपेक्टिव्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है, आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड देन वी कैन हैव अ शॉर्ट सेशन एंड डिस्कशन अबाउट दिस। और पहले आप इसको पढ़ लें
और यहाँ पे भी, if you don't have the handouts with you, anyone who is watching this video can also pause the video and read this text and build their own perspective and have a discussion, and also question what they know about the teaching of phonics and what are the common shared knowledge which is useful for teaching students how to learn reading through the use of phonics. So this is your entire handout. You can pause the video and read from here. Otherwise, you have this handout with you. And before the next class, we'll have a discussion session about this. और हम फिर इसकी बेस पे देखेंगे कि what is true in our experience या what we can use as teachers of reading. ठीक है जी. So I hope this makes sense. जो हमने बात की, if you have any questions, वो भी हम discussion से पहले discuss कर लेंगे. और हम ये जो मैंने आपको handout 1.3 दिया था, इसके बारे में भी आपने खुद जो रीडिंग की है, तो टीचिंग ऑफ फोनिक्स, ये भी आपने पढ़ के इसके पॉइंट्स बना के लाना, and we'll have a discussion about this. So I hope you are okay and safe, and we'll see each other soon. Thank you.